میں نے بتایا نا کہ کوئی فیصلے تاریخ کی شواہد کی بنا پہ کیے جاتے ہیں کہ تاریخ کیا معاملات، کیا تاریخی حقائق کیا کہا جاتا ہے عام طور پہ جتنے انویسٹیگیشن ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، میں آپ کو تاریخی شواہد بتا رہا ہوں نا. عام طور پہ جتنے بھی احمدی مسلمان جامع شہادت نوش فرماتے ہیں اور صحابہ کرام اسلام کی شہداء کی فہرست میں اپنا نام درج نہیں، کراتے ہیں. اسلام کے شہداء کی وہ باتیں علیحدہ ہیں. کیا ہر کیس جو ہے ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں؟ نہیں نا، اس کی ابھی دوسرا ڈاکٹر شہید ہوا ہے، وہ جو جمعے والے دن رمضان میں ایک ڈاکٹر کو گرفتار کیا تھا جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے. ان کی بھی وفات جیل میں ہو گئی ہے، شاید تشدد کی وجہ سے یا کیا ایسے معاملات تھے. تو یہ تو اب ہم تو بہرحال 1400 سال تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. اور ہر قتل کی انویسٹیگیشن بتاتی ہے کہ کیس کس نوعیت کا تھا. آپ 1400 سال کی تاریخ میں ایک ہی پیمانہ فٹ کر رہے ہیں، یہ تو بات نہیں، کوئی اس کی انصاف وجہ ہے نا بھائی جان، آپ تھوڑا سا میرے خیال سے آپ اسلام سے کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، یا ابھی آپ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یا آپ مذہب کوئی اور ہے آپ کا، مجھے پتا بھی کوئی نہیں، ہندو ہیں یہودی ہیں شاید، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو پتہ بھی نہیں چل رہا نا کہ آپ کا کیا معاملات ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس جو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ پرچے ہوتے ہیں یا شہادتیں نوش فرمائی جاتی ہیں، اس کی عمومی طور پہ ایک ہی وجہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے گرفتار کر لیا، نماز جمعہ پڑھتے ہوئے گرفتار کر لیا، تبلیغ کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. یہی ایلیگیشن آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہوتی تھی باتیں نا. کلمہ حق توحید کی بات کر رہے تھے، اس لیے تشدد کا نشانہ بنے. آپ دیکھیں نا کتنی مماثلت ہے صحابہ کرام کے اوپر جو ایلیگیشنز تھے کفار مکہ کی طرف سے، اور آج جو جماعت احمدیہ کے اوپر ایلیگیشنز ہیں اسلام کے دشمنان اسلام کی طرف سے. تو مماثلت تو دیکھیں نا آپ. اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ یہ عین 1400 سال پہلے والا سلوک ہے تو پھر آپ پرچے پرچے نہ درج کرایا کریں، گھر میں بیٹھ جایا کریں اور اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ شہادتوں میں شامل کر دیا کریں. پھر یہ کیا احتجاج کس بات کا کرتے ہیں پھر آپ؟ احتجاج تو ہم اپنی نمازوں میں کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعاؤں کے میں کرتے ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ احتجاج کرتے ہیں؟ ہمیں تو جس پارٹی کا بھی بندہ مر جائے وہ احتجاج بند کر دے، بس شہیدوں میں آپ نے شامل کبھی کرتے ہیں. احمدی مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہو، دھرنے دیے ہوں، کوئی نعرے شارے لگائے ہوں؟ ہم تو فوراً سجدہ زیر ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور، فوراً. یہ ایف آئی آر نہیں کٹواتے، یہ سجدہ زیر ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو ایف آئی آر بتا تو دیا عامر صاحب کہ ذاتی انا کی بنا پہ کوئی موبائل اسنیچنگ کی ایف آئی آر آپ ابھی ایک آدھ دن میں دکھا رہے ہوں گے، یا ڈاکٹر نے فیس زیادہ لے لی، آپریشن غلط ہو گیا تو لوائقین میں سے کسی کو. مطلب ایف آئی آر جھوٹی کاٹی جائے گی؟ نہیں، جو آپ کی طرف سے ایف آئی آر آنی ہے وہ 2-3 وجوہات اس میں ہونی ہے، ان میں سے کوئی 2-3 وجوہات لازمی ایف آئی آر ہاں کی. میں سمجھ گیا نا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جھوٹی کٹی نہیں ہوگی. ایف آئی آر تو پارٹی مضروبہ نے دینی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دینی ہے جن کا قتل ہوا، کہ دوسری پارٹی نے دینی؟ ان کا کچھ بھی نہیں، نہ یہ مضروب پارٹی ہیں نہ یہ قاتل پارٹی ہیں. یہ صرف ٹھا سننے والے ہیں. ملک صاحب ٹھا کی آواز نہیں سنتے. یا یہ ایک ایلیگیشن اور لگ سکتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب تھے تو پیشنٹس کو تبلیغ کرتے ہوئے کلمہ حق قرآن کی کوئی تعلیم بتاتے، آیت پڑھتے، تو یہ بھی ایک ایلیگیشن آ سکتی ہے کہ جی ظاہر سی بات ہے مشہور ڈاکٹر تھے، کافی اسپیشلسٹ تھے، ہارٹ میدے کا سننے میں آ رہا ہے، میدے کے اسپیشلسٹ، جگر کے اسپیشلسٹ تھے کافی. لیکن ویڈیوز بہت دردناک ہیں، اس میں کوئی سننے میں جو کچھ آ رہا ہے آپ ہمیں سنا دیں. میرے پاس جو انفارمیشن تھی بہت بڑے ڈاکٹر تھے، میدے کے ڈاکٹر تھے. ہاں جو کچھ آپ کے سننے میں آ رہا ہے نا وہ سنا دیں، کیونکہ سنی سنائی بات ہی یہاں پہ آپ نے پھیلانی ہے نا. اچھا، ہمارا بہرحال یہ ہے کہ ڈاکٹر چاہے جس بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ سیدھا ولی اللہ یا میری اپنی ذاتی رائے، انسانیت کی خدمت جو ہے نا. اچھا ماشاء اللہ. اچھا، ڈاکٹر جگن ناتھ کے بارے میں بھی آپ کا یہی موقف ہے؟ نہیں، میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ انسانی خدمت جو ہے نا، تو وہ بھی انسانی خدمت کرتا ہے. ڈاکٹر جگن ناتھ تو سجن تھا. اور یہ آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ ایڈیشنل پلس پوائنٹ تھا کہ حقیقی اور سچے اللہ کے رسول کے ماننے والے تھے. او بھائی، ابھی تو آپ نے کہا کسی بھی وہ مسلک سے ہو، کسی عقیدے سے ہو، کسی مذہب سے ہو، ڈاکٹر جگن ناتھ جو حکیم نور الدین کے ساتھ آزاد کشمیر میں، جموں کشمیر میں
तबीब थे जिसने कहा था कि अगर मिर्ज़ा साहब मुर्दा जिंदा करके दिखा दें तो मैं मिर्ज़ा से बैत कर लूंगा। यार वो भी आमिर साहब, वलीउल्लाह मुझे मानते हैं, उसको भी थोड़ा क्यों सा नहीं ना मुझे नहीं समझ आती। आप तो कहीं मैयत में भी जाते होंगे तो जमाती लिटरेचर या 4-5 पर्चियां ले जाके कि उधर लोग रोना धोना कर रहे होते होंगे, आप कहते हो कि यार इधर साइड में हो, मैं तुम्हें मिर्जा साहब की 2-4 हवाले सब बताऊं। आपने खुद यार आप तो इतना यहाँ सबके सामने आपने सबके सामने ये बात नहीं कही कि डॉक्टर हो किसी भी मजहब मसलक से हो मैं उसको वलीउल्लाह ही मानता हूँ। ये सब ने सुनी है बात। डॉक्टर आपने जगन्नाथ को भी शायद वलीउल्लाह मानते बाज़ औक़ात जो है ना वो इंसान क्या बोले, मैंने डॉक्टर की अहमियत को उजागर किया है कि इन आम इंसान में और एक इंसानियत की खिदमत जो एक बड़ा मशहूर पेशा है कि हर वालदैन की, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि यार हमारा बच्चा डॉक्टर बने। दुनिया का कोई प्रोफेशन इतनी जल्दी नहीं किसी के बनने की। मैंने उसकी अहमियत को उजागर किया है कि डॉक्टर एक इंतहाई मोतबर और अहमियत उजागर करते हुए आपने फरमाया कि वो वलीउल्लाह होता है डॉक्टर, भले वो कोई भी हो, किसी मजहब मसलक से हो। ऐसे ही कहा ना आपने। कमाल हो गया यार आमिर साहब। मैंने आपको अर्ज किया ना कि मैं इसलिए आपसे बात करते कतराता हूँ कि आप किसी भी जगह जाएं, जनाजे में जाएं, वहाँ रोना धोना पीटना भाई हो और आप आप पर्चियां कतराते लेके जिस खड़े वजह हो। से हैं, आप जिस वजह से कतराते हैं वो वजह तो सबके सामने आ रही है कि आपने कहा कि डॉक्टर हो भले वो किसी मजहब मसलक से हो, उनके नजदीक वलीउल्लाह ही होता है कि वो नस्ल इंसानी की खिदमत कर रहे हैं ना। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर जगन्नाथ भी तो नस्ल इंसानी की खिदमत कर रहा था। अब आप कतरा रहे हैं क्यों? नहीं, आप उसको वलीउल्लाह का दे दें मेरी तरफ से सैर से। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਕਸਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਲੀਉੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਲੀਉੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। डॉक्टर डेरेंगे एक साडा डॉक्टर डेरेंगे वो भी वलीउल्लाह है। हिसाब लाओ ना, वो जिस उम्र में है ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ देख के कह रहे ने जो कितने ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ माओ की ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। गोद, कितने माओ की गोद उजड़ने से बचाई होगी उन्होंने, कितने वालदेन की बच्चों को यतीम होने से बचाया होगा। ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਜਾੜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। आमिर साहब ਅਮਰ ਭਾਈ कई ਕੱਲ मारियां ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ होती है। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ आमिर बड़े साहब बड़े कई बीमारियां होती ਜਬਰਾ हैं ਸਾਹਿਬ जिनको ਜਿਹਨੇ लाइलाज ਹਰਾਸਮੈਂਟ बीमारियां। ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਲਜਬਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੰਗ ਦਿਲ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਐਗਰੀ? ਸੁਹੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਮਸਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਲੀਉੱਲਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਲਓ ਨਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵਲੀਉੱਲਾ। मेरे सामने तो दो बंदे हो क्लियर चेक करना है। मौलवी साहब ये वजह तनाज़ा नहीं है। डॉक्टर मसीहा होता है, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है। ये वजह तनाज़ा नहीं है। वो किसी की डेथ के मतलब इन्वेस्टिगेशन पे बात हो रही है। अब हम इस वजह से कि वो डॉक्टर फौत हुआ, किसी भी इंसान का मर जाना अच्छी बात नहीं है। वो अली साहब मुझे पता है, मैं भी वो क्या कहते हैं इसी आमिर साहब की जो है ना काफ़ी लंबी इसकी और जो ख़त्म नबूवत वाले हैं इनकी माइंड सेट से वाकिफ़ हूँ। एक बंदे की शहादत हुई है और ये उसको इसी तरह पोर्ट्रेट करेंगे कि किसी तरह भी कंडेमनेशन ना करनी पड़े। वो नीचे नहीं, मौलवी साहब एक सेकंड, मौलवी साहब कलमा एक हक सेकंड और दीजिएगा मुझे इस्लाम की प्लीज। जंग लड़ते लड़ते इस्लाम की शोधा मौलवी साहब, मौलवी साहब। जी जी रॉन्ग नंबर साहब। अनटारगेटेड मिसाइल मलक साहब मौजूद हो? जी जी ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ? नहीं नहीं मैंने नहीं सुनी।
मैंने नहीं सुनी आमिर साहब। किन्ने सुनी है? पप्पू मलिक तू सुनी है? ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਟਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ? ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਲ ਨਾਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ गैर इखलाकी किसी भी थले ला दो, क्योंकि एक गंदा आदमी कहता है कि मैं सुनते लईए लेकिन मैं गवाही नहीं देनी, क्योंकि मर्दाइयां के खिलाफ चली है गवाही, लिहाजा मैं कोई और बकवास करांगा, मैं यह गल नहीं करांगा। चल दफा दे। हाँ जी गल भाई 2 मिनट मैंने दे दोगे? करोगे? अच्छा आमिर भाई, मैं गल पे करते हो डॉक्टर साहब दी एक पर्सनल इशू ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, और उन्होंने गवाही इस तौर से जरूर मिल रही है कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर सन जिगर और मेधा दे, ठीक है, फातिमा हॉस्पिटल दे ते ਜਿਹੜੇ फातिमा हॉस्पिटल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦਾ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸਰਗੋਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਬਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और इन्होंने तहकीक तो बगैर ही उदू कहता जी कि वो MDC ते ताम आया। बहुत शुक्रिया। पहली तो गल है कि नजफ बाज का तलक मलिक साहब सरगोदे नाल है जी जी, ते बंदा कतल होया सरगोदे ते ज्यादा करीने क्या से वे कि नजफ बाज को कोई साडे नाल बेहतर इन्फॉर्मेशन होएगी। फिर भी मैं समझना कि नजफ बाज की गल भी जब तक तस्दीक ना हो जाए FIR जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिले तई तस्दीक ना हो जाए कोई सरगोदे दा या खुशाब दा या पिंडी दा, जी जिले तई 100% तस्दीक ना हो जाए तो कोई बंदा गल आगे बयान करे मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है। इतने सर्टिफिकेट जारी करने लगे ने इस्लाम की खातर, झंडा बुलंद करता हुआ, झंडा हाथ में थामे हुए शहदा की सफ में जाके खड़ा हो गया। आमिर साहब उस दूसरे रॉन्ग नंबर ने भी मेरी बात को गलत पोर्ट्रे किया। बात तो मैंने ये की कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और असल कातिल को सजा मिलनी चाहिए, और उसने कहा नहीं वो शहीद 1400 साल से हो रहे हैं, हम शोहदा में शामिल हो जाते हैं ऐसे में। मैंने कहा फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करना, तो फिर आप FIR भी ना किया करें। अच्छा आमिर भाई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਤਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, मैं पहले ही ਤੁਹਾਨੂੰ कहता है, लेकिन ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों के खिलाफ क्या मुतालबा था कि FIR दर्ज करो कि ना करो, क्या था? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਣਾ ਜੇ? नहीं ये जो कह रहे हैं इस्लाम में मतलब ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ नहीं किसी ने शहीद किया तो छोड़ दो बस। ये देव नगरी है भाई, इंसानियत नहीं, ये कोई रियासत नहीं है, उसके अंदर कवानीन नहीं है, ये भी छोड़ दो भाई। वो तो छोड़ ही रहे हैं भाई आप लोग। साहब इन्वेस्टिगेशन मैटर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन अगर शहादत का अजर ही लेना है तो जंगों में लाखों लोग शहीद होते हैं, फिर वो अजर का ही मुतालबा करते हैं और किसी चीज का मुतालबा नहीं। भाई बासों ने मस्जिद को घेरे में लिया, उधर जुम्मा पढ़ रहे थे कराची में, दहशतगर्दी नारे लगा रहे थे, शहादत हुई है, होनी चाहिए। पर्चा हमारे खिलाफ कटा है, अहमदियों के खिलाफ कटा है, जो अंदर नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद में अपने इबादत कर रहे थे, बाहर दहशतगर्द नारे मार रहे थे, हक रखते हैं ना, उनके खिलाफ पर्चा नहीं कटा है, हमारे खिलाफ कटा है। जो शहादत हमारी हुई है, पर्चा भी हमारे खिलाफ कटा। तुम्हारा कौन सी अदालत, कौन से कानून? मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में शुक्म हो तो इन्वेस्टिगेशन को आप आगे ले जा सकते हो। ओ सुकम कौन सा? उधर तो इमरान को तुमने दे दिया इंसाफ, कानून ने इंसाफ दे रहा है उसको उस मुल्क में। किस इमरान की बात कर रहे हैं?
जो हीरो मुल्क का हीरो है जिसको जेल में बिठाया, वो इंसाफ ले लिया उसने? भाई वो अदालतें जाने और उसका जुर्म जाने, हम इंसाफ देने थोड़ा बैठे, लेकिन हम यकीन तो रखते हैं ना कि मुल्क में इंसाफ चलता है। आपकी अदालतों ने तो भुट्टो को भी इंसाफ नहीं दे दिया था। भाई भुट्टो को इंसाफ जो वक्त की अदालत ने फैसला दिया था उसको तस्लीम किया कि नहीं किया? आज तौबा कर रही है अदालत के, हमने गलत भाई किया था। गलत मिस्टेक अगर हो गई तो इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी की कोशिश की जा सकती कि नहीं की जा सकती? मुल्क का वज़ीर आज़म उसके खिलाफ जो है ना गलती हो गई है, तो क्या फिर इससे हम निजाम को मानना तस्लीम करना कानून बिका हुआ है तुम्हारा भाई, कानून बिका हुआ है। कौन से फिर हल मुल्क क्या है है, इसका? कोई इंसाफ है? हल क्या है इसका? खुदा ताला ही हल साहब, निकालेगा। आपका जो सिस्टम है नजीर साहब, आपका जो सिस्टम बनाया हुआ है स्टेट विद इन स्टेट, उसने लोगों को इंसाफ दिया? अपने जमात अहमदिया के लोगों को इंसाफ दे दिया सबको? नहीं क्या तो लोग- आपके ये तालिबान स्टेट विद इन स्टेट चल रहा है, वो भी दे रहे हैं इंसाफ। अब मेरा आज सवाल पता है ये है, मुफ्ती, सुन आज ले सुन मुफ्ती ले। कभी आज तुम्हारी स्टेट जो लाल मस्जिद है ना, आज मुफ्ती नजीरे रोला ना आज रोला ना। जो बात सुनना, नहीं सुनना बाद में। आपने मुफ्ती। कहा कि तुम्हारी अदालतों ने इंसाफ नहीं दिया। हम मानते हैं हमारी अदालतों में सुकम मौजूद है, गलतियां मौजूद हैं, अभी तक उन्होंने इंसाफ लोगों को नहीं दिया। हजारों लाखों लोग उनके साथ अदालती फैसलों से इंसाफ नहीं हुआ, जुल्म हो गया। अब आप बताएं कि जो आपका निज़ाम बनाया हुआ है इस खलीफा के अंडर, जो एक अदालती निज़ाम है, उसने सब लोगों को इंसाफ दिया? जी अल्लाह के फजल से बहुत लोगों को इंसाफ मिला है। सब लोगों को ना- इंसाफ ना- दिया? 98% लोगों को मिला। दो का अगर कोई हो गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था यानी ये कि 98 और 2% का फिगर आपने कहाँ से लिया है? मुझसे भी जो है, मैं कह रहा हूँ, देख रहा हूँ ना, इंसाफ अल्लाह के फजल से नहीं, हमारे आपकी ये जाती ऑब्जर्वेशन है या आपके पास कोई फिगर है ऐसे कि उन्होंने मेरी बताया कि जाती हमने ठाने सुन तो लेना। मेरी जाती तो है। जाती आपकी जाती राय की क्या हैसियत है? अगर आप 98 की बजाय 100% भी कह दें तो हमारा आपके साथ क्या झगड़ा है? नहीं वो तो बंदा दे, इंसान को अक्ल दिया ना अल्लाह ने। आप कि नहीं दिए? इतने अक्लमंद होते तो आप मिर्जाई होते। हाँ ये आपको अल्लाह ताला ने क्या दी है? क्या आपको अक्ल दी है अल्लाह ताला मिर्जाई बनने के लिए? मैं तो लाख लाख शुक्र खुदा का करता हूँ खौफ कि अल्लाह करें, ने क्यों ऐसा लोगों जो का है ना दिमाग चाटते हो? और नजीर मेरी बात अक्ल दी सुनो, है। मैंने पप्पू को इसलिए नीचे उतार दिया यार, आपने इतना गलत दिमाग किया। हमारे पास नहीं है कि मुफ्त का दिमाग चाटो। मैंने कहा कि मुसलमानों की बनाई हुई अदालतों में गलतियां बड़ी बड़ी मौजूद है, इतनी बड़ी मौजूद है कि अगर आप कहें कि 100 में से 2 लोगों को इंसाफ मिला तो भी मैं मुत्तफिक हूँ, एक को कहें 100 में से मिला तो भी मैं मुत्तफिक हूँ, 99 के साथ ज्यादती होगी। आपकी जो कड़ौती अदालतें बनाई हुई हैं, जो आपके खलीफा ने बनाई, आपके चौथे खलीफा की बेटी उस अदालत के अंदर इंसाफ लेने गई, चौथे खलीफा की बेटी और उसकी बेटी, दोनों माँ बेटी, उनको इंसाफ मिला, वो खुश हैं कि भाई हमें इंसाफ मिल गया अदालत से। नहीं तो वो कोई हमारी रियासत है जिसमें वो रहती हैं, कोई हमारे अगर रियासत नहीं है, अगर रियासत नहीं है, एक मिनट ठहर जाओ, अगर फिर क्या रियासत बात नहीं है, मेरी गल पूरी हो लें, हथी ने पै जाकर गल, अगर रियासत नहीं है तो आपने अदालतें बनाई क्यों है? अदालत तो रियासत की होती है। वालेकुम सलाम। जी नहीं एक वो है एक इखलाकी पंचायत सिस्टम है भाई, जमात के अंदर वो मानो इखलाकी तौर ठीक पर है, नहीं है, मेरी बात तो सुन, का- तो इखलाकी आप तौर पर होता है, मुल्क की अदालत में चले, मुल्क की अगर कवानीन इखलाकी में चले तौर जाओ। पर, भाई उसका नाम अदालत तो नहीं ना होती है, इखलाकी तौर पर तो पंचायत होती है, उसका नाम वही अदालत। पंचायत भी अदालत है ना, और क्या है? कज़ा का क्या मतलब होता है? कज़ा अदालत है, अदालत है, तो अदालत तो पंचायत नहीं होती। ये तो आप तो पंचायत की बात कर रहे हैं। तो पंचायत भी अदालत है भाई। अभी पूछ लेते हैं, जरा म्यूट करें बिलाल भाई अपना। पंचायत फैसले नहीं कर, अदालत फैसले आप करती है, म्यूट पंचायत लगाए ना, आपकी समझ आ गई कि आपने कितना इंसाफ लोगों को दिया। ये चंदा सिस्टर आ गई हैं, ये एक्स कादियानी है। चंदा सिस्टर, जो इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है अदालत का, वहां पर लोगों को इंसाफ मिलता है या कितने लोगों को मिलता है? मैंने तो आज तक कभी किसी को इंसाफ मिलते नहीं देखा। मैं सिर्फ ये बात सुन के आई हूँ, ये शेख महमूद जो हुए, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मैं अभी जॉब से आई हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, पहले तो मैं अफसोस करती हूँ क्योंकि आगे अल्लाह बेहतर जाने और बाकी कानूनी मसले बाद में होंगे। वो बिलाशुबा एक बहुत ही मैदे के और बहुत ही आंतों के और पेट के बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, उनके हाथ में अल्लाह ने शफा दी थी। और रब्बा में बाकी सबको उन्होंने फेल करके रखा हुआ था, यानी कि
और कोई मरीज किसी और के पास जाने के लिए एग्री नहीं होता था, उनके पास रश लगा होता था। इस बात की मैं जो हूँ खुद मैंने देखा है उनको रवा वाले हॉस्पिटल से निकाला गया है कि आपके होते हुए हमारा और कोई काम धंधा नहीं चल रहा, यानी कि बाकी डॉक्टरों ने अदावत से उनको निकाला है। वो सरगोदा शिफ्ट हो गए हैं, सरगोदा में उन्होंने अपना क्लिनिक जारी किया है, या जो भी अपनी प्रैक्टिस की। रवा से, लालिया से, चिन्नौर से बंदे उनके पास जाते हैं, यानी कि उनका मरीज जो है उन्हीं के पास जाते हैं इर्द गिर्द से, ठीक है। तो अब ये बाद में पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर मेहदी का कत्ल जब हुआ था तब भी इन्होंने ऐसा ही शोर मचाया था, मौलवियों ने कत्ल कर दिया, तो बाद में फिर पशेमानी होती है। और मिर्जा साहब ने आज तक, मिर्जा मसरूर साहब ने शर्मिंदगी का भी उससे ना इजहार नहीं किया, मतलब अवाम को भड़काने के बाद। तो मेरा ख्याल से अफसोस है, सबको है, मुझे जाती तौर पे मैं घर आई हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। हाँ जी ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, आवाज सही नहीं है, ਮੋਬ ਨੇ ਆ ਕੇ नजर ਕੀਤਾ का सिग्नल सही नहीं है ना, म्यूट कर लो, सिग्नल सही नहीं है, बाद च गल करना जी। चंदा सिस्टर हाँ जी। और इंसाफ की बात तो अमर भाई, हम तो वाल चिट्टे हो गए, हमने जिंदगी में ये निदा नसर तो चलो एक केस सामने आ गया है, वो तो इनके घर की बच्ची है, इनके अलावा कई नौकरानियां, कई इनके घर में काम करने वालियां, कई हम अपनी माओ से सुनते आए हैं, खुद देखते आए हैं, जलीलो ख्वार होके बदचलनी का इल्जाम लग के पता नहीं उन्होंने फिर झूलों में बच्चे फेंक के किधर गई किधर नहीं गई, जिंदा है मर गई। इंसाफ वाला कोई चक्कर नहीं हमने देखा बदचलनी के इल्जामात के अलावा। हाँ जी अस्तगफिरुल्लाह। लो जी, ये है बंदा जो हकीकत पसंद नहीं होता ना, वो लोगों को इरिटेट करता है इस तरह की जाहिलाना बातें करके कि आपकी अदालतों ने कुछ नहीं दिया, आपकी अदालतों ने पुट्टो को वो दे दिया, फलाने को जुल्म कर दिया। भाई ये गलतियां हर तरफ मौजूद हैं, हमारी तरफ भी मौजूद है, आपकी तरफ भी मौजूद है। तो ये आके एकदम से पूरी कम्युनिटी को इल्जाम देना, ये बंद करो नजीर साहब, ये छोड़। मेरा ख्याल है सब्र करना चाहिए नजीर भाई, क्योंकि ये बहुत ही एक अहम और बहुत ही दुख वाला मामला है। मेरे लिए खुद जाती तौर पे बड़ा दुख है, क्योंकि उस बंदे से ना नुकसान कोई नहीं था, यानी कि उस बंदे के हाथ में अल्लाह ने खैर ही रखी थी, शफा रखी थी, और अहमदियों के अलावा बहुत सारे उसके ऐसे पेशेंट हैं जो रवा छोड़ गए हैं, जो सरगोदा ही जाते थे। अब इस स्कीम के पीछे कौन सा हाथ चला है या ये रब जाने, तो बाद में इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इसलिए वक्ती तौर पे फिलहाल फौरन दुआ तो करनी चाहिए, सब्र भी करना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए कि ये जी पाकिस्तान और ये जी मौलवी और ये जी ऐसा, क्योंकि ये हम सब का मुश्तरका नुकसान है, मैं समझती हूँ। बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं चंदा बहन, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की। इस तरह इन्वेस्टिगेशन भी खराब होती है और असल कातिल भी बाज़ औक़ात बच जाता है। और पता क्या है भाई, बच्चे आगे से मैं अपनी औलाद वाली हूँ, घर में बैठे बच्चे ना डिस्टर्ब होते हैं जब हम नेगेटिव पाकिस्तान के लिए बात करते हैं ना। मेरी बच्ची हर वक्त पाकिस्तान जाने के लिए तैयार रहती है, कदों जाना, अगले महीने चलिए, अगले हफ्ते चलिए। अगर मैं घर में रंडी रोना पाकिस्तान का, कभी किसी का, कभी मौलवियों का, तो मैं नहीं समझती कि हमारे बच्चे 17-18 साल की उम्र तक आके कहेंगे कि टिकटां भी लाइए, उत्थे जलील भी होइए, मौलवियां को जुतियां भी खाइए, दफा करो पाकिस्तान में। वो फिर इस तरह का रुझान पैदा होता है। मेरे ख्याल से डॉक्टर मेहदी जो था वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि वो $24 का स्टंट लेके गया था। उसने कहा था मैं हार्ट बाईपास, ये जो सर्जरी है वो मैं फ्री करूंगा, और उसके जो मरीज थे वो लाइन में लगे थे कि हमारा परसों है, हमारा अगले हफ्ते ऑपरेशन है हमारा।
वो सर्जरी करने गया था, वो एक अल्लाह ने उसके हाथ में एक शफा रखी थी, और उसको जब उसका मर्डर हुआ है तो इन्होंने फौरी तौर पे खाके जारी कर दिए कि ये ऐसा मौलवी था ऐसा, हालांकि वो लड़के थे यंग पटोला से लड़के थे मोटरसाइकिल पे। मैं 26 मई वाला दिन था 2014 मेरा ख्याल है, मैं मेरी अम्मी मेरा अब्बा हम रक्शे पे बैठ के बिश्ती मकबरा से निकले थे हम, जब वो मतलब ये हमारे सामने हुआ है ये ना, तो इन्होंने कहा कि आप फौरन तौर पे तहरीर कर दें, लिख दें, अंगूठे लगा दें कि वो मौलवी थे। यकीन करें वो मौलवी है ही नहीं थे ना, बेचारों के पास दाढ़ी थी, वो मुंडे खुंडे से थे, आगे को चले गए सरगोदा की तरफ, और एक फायर भी उनका मिस नहीं हुआ, सारे के सारे फायर वो डॉक्टर मेहदी को लगे थे। तो हम अड़ गए थे कि हमने नहीं गवाही, अल्लाह कहता है मैं सच्ची गवाही देने वालों के साथ हूँ, तो हमने नहीं गवाही देनी, ये तो लानत है, झूठ है। तो ये जो सिलसिला चलाते हैं ना, फौरी तौर पे खाके अपने बना लेते हैं मौलवियों के, कोई ना कोई TLP का बना लेंगे, कोई ना कोई किसी का 2-4 खाके निकाल के ले आएंगे कि यार देखो जी ऐसी बंदे, इस तरह दे बंदे सी। ये बिल्कुल फजूल है बात। तो मेहदी अली का देख लें, आते 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 इंटरनेशनल सतह पे इनका झूठ पता लगा कि वो बेचारा इन्हां दा अपना ही शिकार होया वे। हाँ जी, ये है वो बातें कि कहने को तो हम यहाँ पे बैठ के 2 मिनट में सारे मुसलमानों का, सारे पाकिस्तान का वो मुंह काला करके ब्राड बंद करके चले जाएंगे, बाद में वो सारी बात अगर गलत साबित हो उसका क्या फायदा। बिल्कुल एक नुकसान भी नज़ीर भाई, एक भी नुकसान होए ना, सुलझे होए और इस तरह दे शफा वाले हाथ बंदे का एक भी नुकसान हो, भले वो क्रिश्चियन हो, अहमदी हो, मुसलमान हो, वो पूरे पाकिस्तान का नुकसान है, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि जितनी देर उसने जिंदा रहना था खैर ही होनी थी और उसके हाथों से शफाई मिलनी थी, रब्बा में उसका तोड़ कोई है ही नहीं था। मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और दुआ भी कर रही हूँ और सब्र भी कि अल्लाह उसके जो जिन्होंने भी ये चाल चला है, प्लान किया है, वो अपने अंजाम तक पहुँचे। लेकिन फिलहाल फटाफट बराडें लगा के ये इन्होंने लगाई हुई हैं, मैंने देखा फोटो लगा के बड़ी गालियाँ दे रहे मौलवी, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नज़ीर भाई करें, मैं अभी जॉब से आई हूँ, मैंने ना बात करती हूँ। यह है बात में बहुत बहुत शुक्रिया। ये होती है बात जो हमें करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोगों के दिमागों में जो पहले से वो खुन्नस भरा हुआ है ना, वो तो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए तो ईद का समा हो जाता है। कोई बंदा कत्ल हो जाता है, किसी का कोई रिश्तेदार, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, आखिर वो इंसान था, कत्ल हो गया, और फिर बेकसूर अगर किसी को मारा फिर और भी बुरी बात है। लेकिन इनकी चांदी हो जाती है, फटोफट अपना वो जो सियासी एजेंडा है उसको लेकर दुकान खोल के बैठ जाते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है भाई। ऐसी चीज़ें बाज़ औक़ात इन्वेस्टिगेशन पे बहुत बुरा असर डालती हैं और इन्वेस्टिगेशन को डीरेल भी कर देती हैं। कत्ल होने वाला हो गया, बाज़ औक़ात अंडर प्रेशर आके महकमा किसी नजायज़ बंदे को नॉमिनेट कर दे, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। हाँ बिल्कुल, जो असल मुजरिम है वो बच जाए और तो गलत बंदा बेगुनाह को जल्दी जल्दी किसी का नाम दे दें और खराब हो, तो कितना बड़ा जुल्म है, उसकी पूरी जिंदगी जाया हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि एक बेकसूर बंदा, उस पे पर्चा दिलवा दिया गलती से, लेकिन असल चीज तो ये है कि जो खून जाया गया, उसका जो असल कातिल था वो भी गया, वो भी अपना मौका लेके निकल गया, और ये जो गलत बंदा था ये भी बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये भी घर आ गया और 302 जाया हो गई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जब वो घर आएगा तो ये इतनी देर जो मशक्कत वो काटेगा वो किस जुमरे में जाएगी, वो नजायज़। इसका तो बेकसूर नुकसान हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो कत्ल का असल मुजरिम था वो भी निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह होता है। इस तरह की बातें करने से फायदा क्या होता है, लेकिन इनको कौन समझाए। अदारों पे बिलीव करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को स्मूथली होने देना चाहिए। पुलिस किसी का नजायज कत्ल जाया नहीं करती और किसी बेगुनाह को कातिल बनाती नहीं है पुलिस। खैर चलें, गलतियां तो पुलिस करती है, इसका तो हम नहीं कहते कि भाई पुलिस बहुत हद तक उनकी कोशिश होती है कि असल कातिल को सामने लाया जाए।
अगर उनको कातिल मतलब मिल रहा हो या उनके लिए जो सीधी राह है वो इख्तियार करना आसान हो तो जानबूझकर वो उल्टी राह किसी के लिए इख्तियार क्यों करेंगे? उनको क्या लालच है इस बात में? फिर यहाँ पर एक कत्ल हुआ, आप देखना है कि भाई कोई उसका मजहबी मुनाफरत सबब है या कोई रज़ाती लड़ाई है या कोई साजिश है। बहुत सारी बातें अभी ये चंदा सिस्टर ने जो बात कही है ना कि रबवा से उनको निकाला गया था, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस बंदे को रबवा से निकाल दिया गया था सिर्फ इस वजह से वो रबवा में दीगरों लोगों की वो चलने नहीं दे रहा था। ये एक बड़ी खबर है। तो कई दफ़ा ऐसे होता है, हसद और जलसी होती है, प्रोफेशनल जलसी होती है, खानदानी मसाइल होते हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ एक वजह को अनाद बना के आप किसी पे पर्चा करवा दे, असल कातिल वो खामोशी से बैठा रहे। अगर कोई इस तरह का मामला हो और यहाँ पर जनाब वो टिकटें बांट रही हैं, शहदा का जो दर्जा है जन्नत में वहाँ पर पहुँचे जा रहे हैं, क्या यार इन लोगों ने किया हुआ तमाशा लगाया है। इतनी आसान सी बात भी इनको समझ नहीं आती है। क्या आप बात करें, सही बात करेंगे, हम आपके पीछे खड़े होंगे, हम आपकी बात की तईद करेंगे। गलत बात करेंगे तो आप हमारा दिमाग चाटेंगे, हम आपका दिमाग चाटेंगे। मलिक साहब उसका क्या फ़ायदा होगा जी? एक फैसल रांझा साहब हैं, शायद वो भी कोई बात करना चाहते हैं जी। ये नार्वे तो ने फैसल राजा नार्वे। अच्छा आमिर भाई एक चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੋਬ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਬ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? फैसल साहब हाँ जी। इंसान दी तहलीक किवें होई? हैं इंसान दी तहलीक किवें होई? पैदा किस तरह आया? हाँ जी, पहला इंसान किवें आया दुनिया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? नहीं अज फिर सुनना चाहना। ਅੱਛਾ हाँ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं इस टाइम एशिया दे दिल च। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ? हाँ जी। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ये गल शुरू करती है ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੋਬ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੋਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਮਗੱਟਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹਤਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इन्वेस्टिगेशन होएगी तो पता लगेगा जी। मैं कह रहा कि कई बार असी ना देखो किन्ने नरम दिल होने बावजूद इस दे सख्त नफरत पाई जाती है मुसलमाना और मकाइयां के दरम्यान। ਉਹਦੇ बावजूद ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਫਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਨਾਈਸ ਹਨ। ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੁਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅਮਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ
ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਖਲੂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਜਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਰਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਬੇਕਸੂਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਬਗੈਰ ਇਹਦੇ ਮਾਇਕ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪੋ ਭਜਕ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਫੈਸਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਔਰ ਖਿਆਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਨਜਬ ਬਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਜਬ ਬਾਸ ਦਾ ਤਲਕ ਸਰਗੋਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਨਜਫ ਭਾਈ ਤੇ ਚੰਦਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਐਕਸਪਰਟਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਡੀਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸ਼ਿਫਾ ਉਹਦੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मर्डर तो 302 ही है ना, बेशक जट जिम्मेदार मर जाए, बेशक फकीर मर जाए, कत्ल तक की सजा तो एक ही है ना। ये तो नहीं कि एक्सपर्ट मर गया तो बंदा उसको 2 बंदों को फांसी की सजा दिला दे। बात तो ये है कि असल इन्वेस्टिगेशन पे जोर देना चाहिए, बजाय इसके कि किसी पे डायरेक्ट इल्जाम डाल दे, इसने कर दिया उसने कर दिया। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ तो मैं वीडियो जो वेख्या, यकीन करो मुसलमान बच्चियां बकायदा रो रही ने, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਗਮਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ।